तो चलिए let us start the exercise 8.2. So here is given that first of all you know about the percentage. Percent means this is the symbol of mathematical symbol for the percent. Okay dear, percent, this is the word and this is the symbol, mathematical symbol for percent, and the meaning of percent is 1 by 100, means out of 100 is known as percent. So keep in mind that in the place of this symbol you will write 1 by 100, or in the place of 1 by 100 you will write this symbol. Okay, after that now we will start here the first question. Question number 1 is given: convert the given fractional numbers to percent. Okay, so first part is given. Here is question is given that question number 1, percent is required. Okay, and a part is given that 1 by 8. Okay, now you convert this 1 by 8 into the percent. So what to do? Try to understand every step here. You will write this 1 by 100 same to same and multiply here by 100 and also divide by 100. अगर आप ऐसा करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड कर लिया, तो क्वेश्चन चेंज नहीं होगा. अब आप इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे. यू विल राइट दिस एज 1 by 8. 1 into 100, you know that 1 into 100 means 100, and after that this 100 you will write just like that 1 by 100, means denominator you will write as 1 by 100. Now you divide 100 by 8, you will get 8 1 ja 8. Okay dear, you will perform just like that. 100 divided by 8, that is 8 1 ja 8, remaining is 2, and now you will take this 0, so 8 2 ja 16, and now remaining is here 4, and here is no any digit, so you mark decimal both places and put here 0 and 0. You will take this 0 just here. 8 5s are 40, 8 5s are 40, and now subtract, nothing you will get here, कुछ नहीं बचेगा. तो इस केस में आपका जो यहाँ पे आंसर हुआ 12.5. and here 1 by 100 you know that this is percent, so in this, for this 1 by 100 you will write percent. So this is the answer of this question. तो आपको क्या करना है, एक बार इसे फिर से समझ लीजिए कि आपने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया है, इसको आप सेम टू सेम लिख लेंगे, and you will multiply 100 and divide by 100 in the same fraction. Then numerator you will take with the multiplication, that is 100 1 ja 100, and denominator you will write same to same, and here is 1 by 100, and the meaning of 1 by 100 is percent. तो आप इसकी जगह 8, 100 by 8 means you will divide this 100 by 8, then you will get 12.5. So the answer of 1 by 8 is 12 by 5%. तो ये आपका आंसर हो गया. एक और क्वेश्चन इसी को समझ लीजिए कि अगर आपको कहीं डाउट रह रहा है तो क्लियर हो जाएगा. लेट अस पार्ट नंबर सी ले लेते हैं. पार्ट नंबर सी में आप देखिएगा कि क्या आंसर आता है. पार्ट नंबर सी, हियर इज गिवन दैट 3 by 40. Convert this 3 by 40 into the percent. So again what to do? Yes, you will write this 3 by 40 same to same and multiply and divide it by 100.
100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से ही डिवाइड करना है. Okay, now this 100 you will take with the 3, that is 3 1 ja 3 means 300. So you will write it as 300 and divide by 40, and now this denominator you will write same to same, that is 100, and this 100 is meaningless, so you will write 1 by 100. Okay, and 1 by 100 you know that this is the percent, so you will write this in this place, this is the percent, and simplify it. So dear, you know that 0 and 0 cancelled, and now divide 30 by 4. So you can again proceed just like that. 30 divided by 4, 4 7 ja 28, and now remaining is 2. Now put here points, and here is also point, take a 0 and take this 0 here. So dear, 4 5s are 20, and here you will get nothing. 5s are 20 means this is 7.5 and percent. So this is the answer of this question. तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ डियर, मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरह मूव करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए कि क्या करना है. यस, फिर से आपसे परसेंट ही पूछा गया है कि आप इसे परसेंट में चेंज कीजिए. So how can you change this into the percent? First part is given that a 0.65. So this is the decimal number, and you will convert this into the percent. So what to do? Yes, you will write just like that, 0.65, same to same, and multiply and divide here by 100 again. 100 से मल्टीप्लाई कर लिया और 100 से ही डिवाइड कर लिया. अब जो नोमिनेटर में 100 लिखा है उसको तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर वाले 100 को आप टच नहीं करेंगे. तो आप देखेंगे हियर इज द 20 एंड इट मींस डेसिमल रिमूव राइट हैंड साइड 2 डिजिट, मींस ये डेसिमल अब आपका यहाँ आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 65. 065 जीरो मीनिंगलेस है, तो जीरो लिखना जरूरी नहीं है. और यहाँ पे क्या बचेगा, इनटू ये 100 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, बचा क्या आपका 1 by 100 इज रिमेनिंग. एंड यू नो दैट 1 by 100 इज, दिस इज द परसेंट. सो यू विल राइट हियर इन दिस प्लेस परसेंट. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस तरह से आप डेसिमल नंबर को परसेंट में चेंज कर सकते हैं. Let us another question, part number D हम आपको बताना चाहते हैं. So here is part number D. This is 12.35. Okay. So now dear, what to do for this? Again, same process you will apply. You will write 12.35 and into multiplied this by 100 and also divide by 100. 100 से multiply करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे. अब करना क्या है, this 100 you will multiply to this number, so you will get it 12. यार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार लिख देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, into 100, and this denominator you will write just like that 1 by 100. So now here is 20. In the multiplication, this decimal remove 2 digit right hand side, that is 1235. Okay, multiplication हो गया, and 1 by 100 you know that this is percent. So आपको यहाँ पे परसेंट मार्क कर देना है. So this is the answer of this question. तो इस तरह से हम इसे भी चेंज कर लेंगे. तो ये इसका आंसर हो गया. ठीक है, चलिए आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 इज 3 पार्ट and this is the 5 parts, and here you can see that 3 parts are shaded. इस तरह से आपको ये shaded दिया है, this is also shaded and this one is also shaded. Now question says that
estimate what part of the figure is colored and hence find the percent which colored. तो आप सबसे पहले इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, तो आप देखेंगे टोटल पार्ट इज 5. ओके, in figure total part equal to 5, shaded part equal to 3, therefore fraction is shaded part divided by total part, means 3 by 5. Now you convert this 3 by 5 into the percent. So what to do? Yes, you will write 3 by 5 just like that, same to same, and multiply and divide it by 100. अब परसेंट में करना है तो वही सेम प्रोसेस रहेगा. अब आपको क्या करना है, इस 100 को टच नहीं करना है और यहाँ पे 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 डिवाइड बाई 5 and this is 1 by 100. Okay, and this 1 by 100 means this is the percent, and so that dear you can write it just like that, 300 by 5, and this is mean percent, so you will mark here percent, and now simplify it, so you will get 5 1 ja 5 and 5 6 ja 30, and this 0 is remaining, so you will write this equal to 60 and percent. So dear, this is the answer of this question. तो इस तरह से हम ये जो शेडेड पार्ट का क्वेश्चन है पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे और फ्रैक्शन में लिखने के बाद फिर इसको परसेंट में चेंज करेंगे. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Okay dear, now moving for next question, that is question number 4. This is the most important, and question is given 25% of 250. Okay, so how can you change 25% of 250? So given that 25% of 250, so this is the question. Okay, now dear you will write this one by one. 25 and percent means 1 by 100, so you will write this 1 by 100. Of means multiplication, and 250 you will write same to same. Okay, so after that what to do, you will write it as 25 into 1, that is 25, and divide by 100 and into 250. Okay, so now simplify it. What to do? 0 and 0 is cancelled out. Okay, and now you will cancel it 5. सीधा आप इसे मल्टीप्लाई कर दो. 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 एंड डिवाइड बाई 10. तो अब आप क्या करेंगे, मैं इसे कैंसिल कर सकता था लेकिन मैंने इसे कैंसिल नहीं किया क्योंकि कैंसिल नहीं करने से ये ज्यादा आसान हो जा रहा है. हाउ मेनी जीरो इन द डिनोमिनेटर, 1. तो आपको क्या करना है, डेसिमल रिप्लेस 1 डिजिट लेफ्ट साइड, सो यू विल गेट दिस एज 62.5 and this is the answer of this question. तो इस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा. चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं. लेट अस अनदर क्वेश्चन, पार्ट नंबर सी नंबर हमें करना है. कन्वर्ट करेंगे 20% ऑफ ₹2500. तो आप समझिए कि इसे करना कैसे है. Yes, 20 same to same, percent means this is 1 by 100, तो आप यहाँ 1 by 100 लिखेंगे. Of means into, and rupees same to same you will write 2500. इसको आप जैसा है वैसा ही लिख देंगे. ठीक है, अब आगे देखेंगे कि यहाँ पे 21 1 जा 21 and divide by 100 and this is rupees 2500. So you can simplify it in the easiest way.
0 and 0 is cancelled, and this 0 is also cancelled. Now rupees you will write in the starting, and remaining number is 2 into 250. 2 into 250 means this is rupees 25 to the 50, and this is 0. So this is the answer of this question. तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का परसेंट फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 हैज बीन कंप्लीटेड. इसके अदर पार्ट्स हैं वो आप ऐसे ही करेंगे. नाउ मूविंग डियर क्वेश्चन नंबर. एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसे किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन सेज दैट व्हाट क्वांटिटी फाइंड करनी है. 5% ऑफ इट इज 600. तो ये किस क्वांटिटी का 5% 600 है ये पता करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे. लेट द क्वांटिटी बी x. आपसे क्वांटिटी पूछिए तो आपने लेट कर लिया, लेट द क्वांटिटी बी x. ओके, नाउ यस व्हाट टू डू. 5% of it means quantity, so you will write 5% of it की जगह आप लिखेंगे quantity. You have to take it x, and this is means equal 600. So try to understand this step. 5% of it means quantity, and quantity you have take x, so 5% of x is means equal, this is 600. Okay, now solve it. 5% means 1 by 100, this is the percent, and of means into, and x is given here, so you will write same to same, equal to 600, you will write again same to same. Now 5 into 1, so you will get 5 1 ja 5 and divide by 100, and this is x, so 5 into x means this is 5x and equal to 600. So what to do after this step. Now you transpose all the things, you will get only x, so you will write it as just 5x equal to 600 into, you transpose this 100 to right hand side. ये 100 को ट्रांसपोज करेंगे तो 100 कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर को आप इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा. यू विल गेट इट एज 100. ओके, एंड देन अगेन यू ट्रांसपोज दिस 5 टू राइट साइड, सो यू विल गेट x इक्वल टू 600 इंटू 100 डिवाइड बाई 5. इस 5 को डिवाइड ट्रांसपोज करेंगे, सो हियर इज द मल्टीप्लीकेशन, and multiplicative quantity will goes to the denominator, means ये denominator में आएगा तो आपने denominator में लिख लिया. now cancel it, simplify it, so dear you know that 5 1 ja 5 and again 5 1 ja 5 and remaining is here 1, so it is 10. 5 2 ja 10 and this 0, so you will get 120 into 100. So this is how much, x equal to 1 2 and 1 2 3 0. So this is the answer. Therefore quantity is how much, quantity equal to 1200. Yes, this is the answer. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, इसे आप ध्यान से समझिए. आई वॉन्ट टू टेल यू दैट अनदर क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आप इसे ध्यान से समझो कि इसको किस तरह से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में जरूर आएगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट अस, आई वॉन्ट टू टेल यू पार्ट नंबर सी पार्ट बता देते हैं कि सी पार्ट कैसे करना है. सो पार्ट नंबर सी इज गिवन हियर.
that is 40% of it, 40% of it is 500 kilometer. So this is given that 500 kilometer. You will start it just like that, same to same. First of all you will write that the quantity Vx. सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन में यही करना है, let the quantity be x. After that question is given that 40% of x, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 40% of x, आपने क्वांटिटी को x मान लिया, and this is 500 किलोमीटर. सो यूनिट आपको जो भी दिया है आप लिखते रहेंगे. अब आप फिर से वही लिखेंगे, परसेंट मीन्स 1/100 एंड 40 की जगह यहाँ पे 40 लिखेंगे. सो इट इज 40 इंटू 1/100 इंटू एक्स, और यहाँ पे होगा 500 किलोमीटर. एंड नाउ 40 1 जा 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, और 40 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 500 किलोमीटर. सो डियर हियर 0 and 0 is cancelled out. Now you will get 4x by 10, 4 into 10, and this just goes to denominator, that is divide by 4. Now you can simplify it. So you will get dear 4 1 ja 4, and again 4 1 ja 4, remaining is 1. So it is 10, 4 2 ja 8. Now remaining is 2. So 4 5 ja 20, because 2 and 2 and 0 how much? 20. So now 125 and into 10 you will get it 1250. जीरो है तो जीरो पुट कर देंगे. तो क्वांटिटी है, और यहाँ पे क्या था? यूनिट. यूनिट आपको किलोमीटर दिया था, तो आप यहाँ पे किलोमीटर लिख देंगे. यहाँ भी आपका किलोमीटर रहेगा और आंसर भी आपका किलोमीटर में ही आ जाएगा. तो ये आपका हो गया 1250. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे. सो दिस इज द आंसर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इस तरह से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं और इन्हें कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, और उसके बाद फिर सिंपलेस्ट फॉर्म भी पूछा है. तो देखिए हाँ कैसे करना है मैं अभी बता दे रहा हूं. तो यहाँ पे पार्ट नंबर ए दिया है 25%. ओके, तो आपको यहाँ पे डेसिमल, ये आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, डेसिमल नंबर में लिखना है. तो किस तरह से आप करेंगे मैं बताता हूं. यस, बहुत आसान है. 25 एंड परसेंट मीन्स यू नो दैट 1/100, तो यहाँ पे 1/100 लिख लेंगे. आप मल्टीप्लाई कीजिए, 25 बन जा 25 हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई 100. अब आप देखो यहाँ डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट साइड रिप्लेस हो जाएगा. तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.25. तो पहला आंसर देखिए आ गया बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. अब आपको सेकंड पार्ट भी इसका बताना है. फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, सेकंड पार्ट क्या बताना है? सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है. तो आप ये नंबर लेंगे 25 डिवाइड बाई 100, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है. तो चाहे तो आप इसे 5 से डिवाइड कर लो, और चाहे इसे सीधा 25 से डिवाइड कर लो. तो हम क्या करते हैं 25 से ही डिवाइड कर लेते हैं, तो एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा. तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, और 100 को 25 से डिवाइड करोगे तो 25 4 100. तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया? इसका आंसर आ गया 1/4. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. तो ये दूसरा वाला भी आंसर आ गया कि इसका आंसर क्या होगा 1/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हमेशा आप यही लेंगे
डेसिमल तो आपका ये हो गया, लेकिन जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर 1/4 हो गया। बस इतना ही करना था। तो यही चीज बाकी के सभी पार्ट में करनी है, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इक्वल टू, हाँ एकदम सही। मेल आपके कितने हैं? मेल इज गिवन दैट 40%। अब चिल्ड्रंस पूछा हुआ है कि चिल्ड्रन कितना है, तो चिल्ड्रंस के लिए क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि करना कैसे, कॉपी में कैसे लिखेंगे। यस ऑफ कोर्स यू कैन राइट। आपको अच्छे से पता है कि परसेंटेज हमेशा 100 में होता है, तो ये सभी मिला के ये 30% मीन्स 100 में से 30 लोग फीमेल्स हैं, 100 में से 40 लोग मेल हैं। अब चिल्ड्रन कितने हैं वो आराम से पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिस इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन परसेंट, आपको परसेंट में ही बताना है। सो यू विल राइट 100, टोटल 100 होता है, उसमें से 30% आपके फीमेल हैं और 40% आपके मेल्स हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे और 100 में से आप इसे माइनस कर लेंगे। तो देखिए 100 माइनस 30 एंड 40 होता है 70। तो 70 जब आप 100 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 30%। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो जाएंगे 30% और ये इसका आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये भी कितना छोटा सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और 3 बचे हैं, तो उसको भी देख लीजिए। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। टोटल वोटर्स कितने हैं? 15,000 और वोटेड कितने, वोट कितने लोगों ने डाले हैं? 60% ने। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वोटर्स हु डिड नॉट वोट। कैन यू नाउ फाइंड द हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। आप ये नंबर भी बता सकते। क्वेश्चन नंबर 8 इज 8 एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। करना क्या है, टोटल नंबर्स पहले लिख लो। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, दिस इज 1000, दिस इज 15,000। ओके, एंड क्वेश्चन से 60% वोटेड। वोटिंग कितनी हो गई? वोटिंग दिस इक्वल टू 60%। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will find here how many voters did not vote. Okay, so dear we will write for solution, part of voters who did not vote. किन लोगों ने वोट नहीं दिया, तो उसका नंबर हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। दिस इक्वल टू, तो आपको अच्छे से पता है टोटल वोटर्स कितने होंगे? 100%, और उसमें 60% ने वोटिंग कर ली है, तो कितना बचेंगे? 60% आप माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 40%। 40% वोटर डिड नॉट वोट। ओके, यही आंसर हो गया। अब इसमें ये भी पूछा गया था ये 40% कितने लोग हैं, तो आपको टोटल वोटर्स पता है, तो इतने वोटर्स का 40% फाइंड कर लीजिए, तो वो भी पता चल जाएगा। सो नाउ नंबर ऑफ वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स, यस करेक्ट आंसर। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40% ऑफ 15,000। सो दिस इक्वल टू 40% का मतलब आप समझते हो 1/100 एंड 15,000 सेम टू सेम लिखना है। अब आप क्या करेंगे? आप देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो 4 बन जा 4, 6,000। यस, एंड यहाँ डिनोमिनेटर में 10 होगा और यहाँ पे 15,000 सेम टू सेम। सो 0 एंड 0 अगेन कैंसिल। नाउ 15 4 जा 60 एंड कितने 0 और हैं? 2 0 और हैं, तो ये आपका आंसर हो गया।
60,000 voters did not vote here. So this is the answer of this question. तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम यहाँ परसेंटेज में वोटर्स फाइंड करेंगे कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो 100 से माइनस कर लेंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ वोटर्स तो 40% ऑफ 15,000 फाइंड करेंगे, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितने वोटर्स ने वोट नहीं डाला है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था और पूरा हो गया। अब 9 नंबर देखें और 10 नंबर आपको दे रखी है। दिस इज 400 रुपीज 400, और परसेंट सेविंग का परसेंट कितना है, परसेंट ऑफ सेविंग, दिस इज गिवन दैट 10%। ओके, 2 थिंग्स इज ओनली गिवन। तो आपसे पूछा कि सैलरी बताइए कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, लेट द सैलरी ऑफ मीता इक्वल टू x। हमने उसकी सैलरी को ₹X मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मीता को ऐसे लिखिए, मीता डबल ही है, तो रुपीज में है तो आप ₹X लिख लीजिए, ठीक है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे जो सेविंग है वो 10% है, तो 10% किसका सेविंग है, सैलरी का। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 10% ऑफ x, तो जब सेविंग की तो कितनी सेविंग हुई, 400, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ₹400। फिर से इस चीज को एक बार समझ लीजिए। आपसे पूछा गया सैलरी कितनी है, तो आपने तुरंत लेट किया सैलरी भी x, ओके। अब सैलरी का 10%, दिस इज गिवन दैट 400। जब उसने 10% सेविंग किया तो वो 400 है, तो आपने तुरंत लिखा 10% ऑफ x इक्वल टू ₹400। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 10% का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब इनटू, और x सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे आ गया ₹400 अगेन सेम टू सेम। तो आप देखिए यहाँ 0 से तो 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए कि आगे क्या होना है, यस 1 into 1 1 ही होगा, और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x डिवाइड बाई 10 इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। आप 10 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो जब आप 10 को ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यस 10 आपका डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपीज, यस हाँ, अभी आंसर आ जाएगा 4000, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 4000। नहीं, सेविंग 400 है। अगर आपकी बुक में 4000 है तो आप 4000 यहाँ लिख लेंगे। हमारी बुक में यहाँ 4000 नहीं 400 लिखी हुई है, तो उस समय उसकी सैलरी यहाँ 40,000 अगर आ जाएगी। अगर आपकी बुक में यहाँ 4000 है तो आप यहाँ 4000 लिखेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40,000। अब इस बुक में लिखा हुआ है 4000, तो हम उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। अगर आपकी बुक में 4000 है तो आप यहाँ आंसर 40,000 लिख देंगे, यहाँ पे 4000, यहाँ पे 4000, यहाँ भी 4000, ठीक है। और अगर 400 ही है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मीन्स सैलरी कितनी हो जाएगी, सैलरी इक्वल टू ₹4,000। हाँ, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका 10 नंबर। टोटल नंबर ऑफ मैच कितने आपको दिए गए हैं, इट इज 20, और इट वॉन 25%। विनिंग मैच कितने हैं, 25%। हाँ, सही आंसर बताया। तो चलिए अब बहुत आसानी से इसे हम कर पाएंगे, इतना ही दिया है तो आप सीधा स्टार्ट करेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ मैचेस
won. This equal to 25% of 20. 25% ऑफ 20 में इसका 25% आप फाइंड कर लो। तो आप देखो कैसे करोगे, 25% का मतलब कितना हो गया, 25% का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब इनटू, और यहाँ पे 20 लिखा है। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आप देखो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 1 तो 25, एंड यहाँ पे कितना है 100, एंड डिवाइड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इसे भी कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और फिर 5 को भी कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो सारा कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 5। तो आप फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ मैच वॉन, देयरफॉर हाँ नंबर ऑफ मैचेस, यस ऑफ कोर्स, इक्वल टू 5, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, वो कंप्लीट हो गई। तो अगली एक्सरसाइज अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ना था। तो सो डियर थैंक यू माय फ्रेंड।